जी पोर्टल ए पोर्टल नहीं ऑन करना है ना अटेंडेंस के लिए, जी पोर्टल नहीं करना। हाँ 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 नहीं नहीं नॉर्मल। अस्सलाम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। ओके नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? पहले इसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। जी जी
How to define rheumatoid arthritis? कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, RA को? मैम ये एक मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ओके, और इसमें जो है वो सिमेट्रिकल भी होता है और पोली आर्थ्रोपैथी होती है, यानी कि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। शाबाश। एंड व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? मैम इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो अभी तक हमें पूरी तरह इसकी पता नहीं है। शाबाश। उसके अलावा इसमें जो है वो ये नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है, जो नोड्यूल्स होती हैं वो जब ये डिजीज़ एडवांस हो जाती है उसमें पेशेंट में हमें नोड्यूल्स मिलते हैं। व्हाट आर द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस? मैम एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन में इसके जो है वो मल्टीपल जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उनमें जो जो हमें कंडीशंस नज़र आती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो अगर तो इसमें जो आइज़ हैं उसमें कंजक्टाइवस हो जाता है और उसके अलावा हमारे पास स्किन थिनिंग होती है पेशेंट में। Okay. Now, tell me about the treatment of rheumatoid arthritis. अब कोई और स्टूडेंट बताएगा मुझे। What is the मैम treatment of? जी जी बताएं। मैम नॉन स्टीरॉयडल NSAIDs देते हैं, उसके बाद पेन रिलीफ के लिए पैरासीटामोल भी देते हैं, एक्सरेज लेते हैं, तो इस तरह से इनको ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। और PMRs Rheumatoid arthritis, ठीक है। Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, ठीक है। It affects the small joints of the body and females are more affected than males. Pathophysiology is not completely known, ठीक है, but basically होता क्या है, uncontrolled inflammation and bone destructions occur in this disease. Signs and symptoms are morning stiffness and also swellings and inflammations. Symmetrical joint swellings होती हैं, erosions होती हैं, decalcifications on X-rays, ठीक है। There are different deformities of rheumatoid arthritis, for example, swan neck deformities, botanic deformities, lateral dislocations of the hands, and the subluxation of metacarpophalangeal joints. And there are, as it is autoimmune disease, there are extra-articular manifestation of this disease also present. Now, how to investigate the disease? Basically, we have to do the blood test in which we have to do a complete blood count, urea, electrolytes, liver function test. But imaging techniques, X-rays are very, very important. Diagnostic criteria, ठीक है? Diagnostic criteria के लिए X-ray investigations are very important, ठीक है? X-ray पे आप bone erosions देखते हो, ठीक है, जहां से bone की destruction हुई होती है, dislocations आप देख लेते हो, nodular formation देख लेते हैं, ये जो lateral dislocations हुई हुई है, ठीक है। इसके अलावा किन जॉइंट्स पे क्या डिफॉर्मिटीज हैं, बॉटनियर डिफॉर्मिटीज आप देख लेते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज देख लेते हैं, ठीक है। ग्रॉसली अगर देखा जाए तो दिस इज बेसिकली द डिफॉर्मिटीज डेवलप, ठीक है, व्हेन द डिजीज गेट्स वर्स। ओके, दिस इज अनदर एक्स-रे, ठीक है। मैनेजमेंट प्लान में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन व्हिच यू हैव टू टेल पेशेंट दैट यू हैव टू वेट लॉस, ठीक है, स्मोकिंग सेसेशन, पेन रिलीफ, disease modifying anti-rheumatic drugs are very, very important in this disease, ठीक है। Now the second disease in this lecture is osteoarthritis, ठीक है। What is osteoarthritis? It is actually the degenerative disease of the old age, ठीक है। With the passage of time, bones में जो degenerative changes आती हैं, that is basically osteoarthritis. And in females after menopause, when reproductive hormones levels are less, ठीक है, जब reproductive hormones levels जो है वो menopausal women में कम हो जाते हैं, that can also lead to osteoarthritis, the degenerative diseases of the joints. Osteoarthritis are basically are of two types. Primary osteoarthritis, as you know, that is without any known cause, means के with the passage of time, old age में degenerative changes आती हैं, उसका कोई specific cause नहीं है, that is the primary one. And what is the secondary osteoarthritis? Basically, the secondary osteoarthritis is basically of a different when there is some pathology present in the body, for example, increased BMI, when obesity present, hyperparathyroidism. What is hyperparathyroidism? When parathyroid hormones secretions are very, very high, and parathyroid hormone क्या करता है, bone से calcium को निकाल के blood में calcium का level बढ़ाता है, and it can lead to bone demineralization, bone density become decreases, bone strengthening become decreases, bone की जो tensile force है वो कम हो जाती है, and it can lead to also degeneration of the bones, ठीक है। जो osteoarthritis है, osteoarthritis
ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कितने टाइप्स का है, दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बच्चों, बोर्ड नजर आ रहा है सबको? जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली उसमें क्या होगा, दैट इज विदाउट एनी कॉज। आपको पता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन हो या कोई भी डिजीज ऐसी जिसमें जो उसका जो प्राइमरी जो उसका टाइप होती है वो विदाउट एनी कॉज होती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? देयर आर डिफरेंट signs and symptoms in this disease. Basically the bigger joints of the body are involved. For example, knee joints, weight bearing joints, knee joints and hip joints and ankle joints, and they are basically the joints mostly affected in osteoarthritis. But small joints of the body also get worse, ठीक है। small joints में ये disease हो जाती है with the passage of time, but this is not a symmetrical polyarthropathy, means के दोनों sides के joints simultaneously sometimes नहीं भी involve होते, ठीक है। monoarthritic disease है, single joint involve हो सकता है। एक पेशेंट ओल्ड एज आपके पास आ सकता है 60 to 65 इयर्स एज का, जो आपको कंप्लेन कर सकता है दैट उसको नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, पेन है। और आप जब हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एज मैटर्स, ठीक है, कि ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है डिजनरेटिव डिजीज है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जब आप बनाएंगे तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। As in rheumatoid arthritis, we came to know that there are different types of deformities occurring in rheumatoid arthritis, that are swan neck deformities, Bordenier deformities. But in osteoarthritis, there are other types of nodes develop in the hands. For example, Heberden nodes and Butcher nodes. Joint stiffnesses occurs, joint line tenderness, decreased range of movements, deformities, and muscle wasting. These are all signs and symptoms of osteoarthritis. Now, what is the pathophysiology? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी तो हमें बिल्कुल पता नहीं थी, ठीक है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली इज द डिजीज जिसमें बेसिकली जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। एज दिस डायग्राम शोज, in this diagram this cartilage which basically covers the bony and become damaged, ठीक है। cartilage जब damage हो जाएगा तो bone is exposed, when bone is exposed, breakdown of the bones and degeneration of the bone occurs, ठीक है। here bony spurs develop, ठीक है, bony spurs develop हो जाती है, bone sclerosis हो जाती है। sclerosis is basically is the term used when the bone formation occur within the bone. And another type of pathology occurs here is osteophytes development. What is osteophytes? When bone grows outside the bone, ठीक है। तो these two changes are very very important regarding pathophysiology. Decrease in cartilage, so bone exposed, this gives increased bone formation inside the bone, that is sclerosis, and increased bone formation outside the bone, that is osteophytes. These are the changes occurs in osteoarthritis, and other types of changes are like microfractures occurs, okay। Now what are the investigations? Investigations में आप blood test करवाते हो, same as that with rheumatoid arthritis, but only to exclude the rheumatoid arthritis. Basically the diagnosis of osteoarthritis is by x-rays. What are the changes occurs in the x-rays are decreased joint space, sclerosis, subchondral cyst, and osteophytes. These are the changes occurs on the x-rays. So x-rays are the main investigations in osteoarthritis. Now what is the treatment of osteoarthritis? First of all, conservative treatment, lifestyle changes are very very important. Analgesics for the pain relief, NSAIDs to relieve the inflammation, but NSAIDs are given with caution because they can cause peptic ulcerations. Physiotherapy techniques are very very important in osteoarthritis. Steroid injections are very important, especially intra-articular injection, joints के अंदर injection लगाए जाते हैं in order to reduce the systemic effects of corticosteroids. Now what is the surgical treatment? When joints become so much degenerative, the joints सब इतने degenerate हो जाते हैं that it affects the quality of life, तो surgical treatment is the best treatment, जिसमें joint replacement treatment are very very common nowadays, ठीक है। joint replacement जो आजकल टेक्निक्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो की जाती है, बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है नाउअडेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिफाइन द डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Degenerative joint disease, a clinical syndrome of joint pain accompanied by functional limitation and reduced quality of life. ठीक है, जब भी वाइवा में आपसे पूछा जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है. डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड द joints which are affected the more are hip joints, knee joints, and also small joints of hands and big toe. Now, what are the risk factors? बच्चों, हर एक टर्मिनोलॉजी जो होती है that is different from the other. Definition में आपको पता, आपने डिफाइन करना होता है. एंड रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको रिस्क ज्यादा है इस डिजीज का. ओबेसिटी, अगर कोई पेशेंट ओबीज है, वुमेन आर मोर वल्नरेबल टू दिस डिजीज बिकॉज वुमेन में रिप्रोडक्टिव एज में तो हार्मोन्स, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डेवलप हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन उनकी हो रही होती है. बट आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, डिजेनरेटिव जॉइंट चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू सेसेशन ऑफ दैट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. इंक्रीजिंग एज इज अनदर रिस्क फैक्टर. जॉइंट इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ऑक्यूपेशनल रिपीटेटिव स्ट्रेस लोड और मैनुअल वर्कर्स, दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, जब आपसे वाइवा में रिस्क फैक्टर्स पूछे जाएं तो रिस्क फैक्टर्स ही बताएं. ठीक है, उसमें आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने आंसर क्या करना है. ठीक है, आप उस वक्त ये एग्जामिनर से पूछ रहे होते हो कि हमें थोड़ा सा हिंट दे दें कि हमने इसका क्या आंसर करना है. आता आपको है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द रिलीविंग फैक्टर्स. ठीक है, एंड दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू यूज इन द मेडिकल डिजीजेस. ओके, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. The pathophysiology, as I already explained, that cartilage get damaged and bone is exposed. Bone breakdown occurs. ठीक है, sclerotic changes occurs in the bones and osteophyte changes occurs in the bones. यहाँ पे बोन की जो स्पेस है, जॉइंट स्पेस जो है, बेसिकली जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है. पेशेंट जो है वो मूवमेंट के साथ पेन फील करता है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं जॉइंट्स, जो कार्टिलेज है वो वहां से डैमेज हो जाता है. दिस इज अनदर डायग्राम. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल जॉइंट जिसमें बोनी एंड्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज, बट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज गेट डैमेज. ठीक है, एंड बोन्स बिकम एक्सपोज्ड एंड डिजेनरेटिव चेंजेस अकर्स इन द बोन्स. बोनी स्पर्स अकर्स, sclerotic changes occurs in the bones and also osteophytes. Osteophytes are excessive bone formation outside the bones. ठीक है, so this is the complete degenerating joint picture. Okay, well, now these are basically the diagnostic points. ठीक है, Heberden nodes and Butcher nodes are the main diagnostic criteria to diagnose osteoarthritis. Heberden nodes are basically the nodes size of the piece and develop on the end joints of the fingers. These are Heberden nodes and these are Butcher nodes, and Butcher nodes are developed middle joints of the fingers. These two changes occurs in osteoarthritis. ठीक है, and you can diagnose the patient with old age with these changes that he or she can has developed osteoarthritis. ठीक है, and the disease get worse now. ठीक है, this results in pain, redness and swellings in the joint. These are basically the 2 points, Heberden nodes and Butcher nodes, which are the pathognomonic points in the osteoarthritis. ठीक है, ये पिक्चर अगर आपको दिखाई जाती है और आपको लेबलिंग के लिए कहा जाता है और ये पूछा जाता है कि इस किस डिजीज में ये नोड्स डेवलप होते हैं, तो you have to tell that osteoarthritis is the disease and these nodes are Heberden nodes and these are the Butcher nodes. Now these are again the differences between RA and osteoarthritis, rheumatoid arthritis and osteoarthritis. ठीक है, अगर तो आप इसकी इन टॉपिक्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ये चाहिए कि आप इन डिफरेंसेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें. ठीक है, पूरा जो टॉपिक है आप अपना गो थ्रू कर लो. इन डिफरेंसेस के अलावा आप इसमें ऐड कर लो मजीद के व्हाट आर द डिफरेंट डिफॉर्मिटीज. ठीक है, दोनों की जो डिफॉर्मिटीज हैं कौन सी हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाई जाती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. ठीक है, तो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स अगर आप उनको कंप्लीटली यहाँ पे लिख लेते हैं कंपैरिजन में, तो आपके दोनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. ठीक है, और किस तरह से एक्स-रे फाइंडिंग्स होती हैं दोनों में. ठीक है, एंड व्हाट आर द नोड्स डेवलप्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट्स, ट्रीटमेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. ये कंपैरिजन की पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बच्चों, इस पे कोई भी माफी नहीं है. जब वाइवा में अगर आपको ये भी नहीं आएगा तो वाइवा में इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं आता. ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के डिफरेंसेस. Okay, what are the investigations? Blood tests आप जरूर करवाते हैं, complete blood count, urine complete examination, liver function test, ESR, C-reactive proteins, but only to exclude the rheumatoid arthritis. Basically,
The diagnosis of osteoarthritis is done only by X-ray findings. What are the X-ray findings? 4 cardinal signs. ठीक है? This is very important question. ठीक है? Exam point of view से that what are the 4 cardinal signs of X-ray for rheumatoid arthritis? Loss of joint space, osteophytes, subchondral sclerosis. Subchondral means below the cartilage जो sclerosis हो जाता है bone के अंदर, sclerotic changes आती हैं, subchondral cysts. These are micro fractures. मिनी फ्रैक्चर्स. ठीक है? ये एक्सरे अगर आपको दिखाया जाए तो आप ये देखें कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल जॉइंट. ठीक है? यहाँ पे जॉइंट स्पेस जो है वो कम हुई हुई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुई हुई है, दैट इज ऑस्टियोफाइट्स. दिस इज द हार्डनिंग ऑफ द बोन, स्क्लेरोटिक चेंजेस इन द बोन. ठीक है? रिड्यूस जॉइंट स्पेस, दिस इज द फाइंडिंग. ठीक है? इस एक्सरे को देखते हुए क्या किस तरह आपने लेबल करना है, लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस एक्सरे इज जो ये एक्सरे शो कर रहा है वो किस डिजीज को शो कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो आपको एक्सरे फाइंडिंग्स आ सकती हैं, आप अपने आप को फुली प्रिपेयर रखें, आपको वाइवा लिया जा सकता है. ठीक है? आपसे कार्डिनल साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 10 कंपैरिजंस भी पूछे जा सकते हैं, मैं आपको भी बता रही हूँ. पैथोफिजियोलॉजी भी आप कंपैरिजन में लिख सकते हो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की क्या पैथोफिजियोलॉजी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या पैथोफिजियोलॉजी. इस तरह से आप अपने पास नोट्स बना लें. ठीक है? तो दीज आर द एक्सरे फाइंडिंग्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है? दिस इज अनदर डायग्राम. ठीक है? दिस इज द नॉर्मल नी जॉइंट and here the joint space is reduced and also bony spurs present. ठीक है? This is the outward जो bony spurs हैं वो develop हुए हैं. Now what is the management? Conservative management is very important. Conservative management वो होती है जिसमें अभी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते. ठीक है? आपने अभी ड्रग्स या कोई भी मेडिसिन नहीं देनी. Only muscle strengthening exercises and aerobic exercises are done. ठीक है? ड्रग्स में आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में फॉर पेन रिलीफ पैरासीटामोल एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. ठीक है? इफ ओनली वन जॉइंट इज इन्वॉल्व, अगर एक ही बॉडी का जॉइंट इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट इन्वॉल्व है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप पूरी बॉडी को स्टेरॉइड का इफेक्ट दें. आप सिर्फ उसी जॉइंट पे अगर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगा देते हैं तो हम सिर्फ उसी जॉइंट को लोकल एक टॉपिकल इंजेक्शन लगा के उसी को ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है? तो इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? सर्जिकल ट्रीटमेंट ओनली indicated when pain and stiffness have a substantial impact on quality of life. This line is very important. मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि when in osteoarthritis surgical treatment is indicated, you have to tell me that when pain and stiffness impact on the quality of life. Patient की movement reduce हो गई है, restricted movement हो गई है, painful joints हो गए हैं, stiffness develop हो गई है, तो treatment is सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट. ठीक है? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो होती हैं वो आप आजकल बहुत कॉमन है. ठीक है? वो करवा दी जाती हैं एंड फिजियोथेरेपी टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? सो दिस इज द डायग्राम हैंड चेंजेस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आप मुझे बताते जाइए फर्स्ट वाला कौन सा चेंज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? हाँ, उसकी लेटरल डेविएशन हुई है, lateral deviation of the hand. ठीक है? उसके बाद ये वाला कौन सा चेंज है? Bended nodes, Harbender nodes. कौन सा? This is basically the subluxation of metacarpophalangeal joint. Subluxation क्या होती है? When there is mild displacement. ये देखो थोड़ा सी डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से joint. ठीक है? What is this? ये जो एरो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? It also shows displacement of the joint. What is this? ये कौन सी डिफॉर्मिटी है? मैम स्वान्स नेक है. ठीक है? And what is this? ना वो बुलायर वाला जो था वो है, कौन सा वाला? बॉटनियर वाला जो था. ठीक है? ठीक है? These are all the changes. These are the hand changes of osteoarthritis. ठीक है? These are Harbender nodes. These are Butcher nodes. ठीक है? Square thumbs develop हो जाते हैं इस तरह से. ठीक है? तो this is about last lecture. Now we start another lecture, second lecture. बच्चों आप लोगों का एड ड्रॉप खत्म हो गया. अब जितनी स्ट्रेंथ यहाँ प्रेजेंट है, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के इश्यूज सॉल्व हो गए? Yes, ma'am. Okay.
Now our second lecture is about connective tissue disorders, crystal deposition diseases and connective tissue diseases. What is crystal deposition diseases? कभी पढ़ी है पहले? मैम यूरिक एसिड वगैरह वाला जो डेपोजिशन हो जाती है. Sorry? यूरिक एसिड से deposition हो जाती है. ठीक है. What is gout? Gout क्या होता है? यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की जो डेपोजिशन हो जाती है इन द जॉइंट्स, दैट इज बेसिकली गाउट. ठीक है. How to define the disease? Basically, it is an abnormality of uric acid metabolism results in deposition of sodium urate crystals. ठीक है. What is this disease? Abnormality of uric acid metabolism means कि uric acid की metabolism की क्या क्या abnormalities हो सकती हैं. या तो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो रही है इन द बॉडी, दैट आर इन 10% ऑफ द केसेस. ठीक है. और अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड मींस कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनीज लेस हो गई है, दैट इज इन 90% ऑफ द केसेस. So the gout is the disease when there is uric acid metabolic disease. ठीक है. यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म में जब कोई एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, या तो उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है, पेशेंट कुछ ऐसा फूड ले रहा है जिसमें यूरिक एसिड जो है बहुत एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, जैसे रेड मीट है, बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, प्यूरिन डाइट है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बॉडी में ज्यादा हो गई है, बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं या एक्सेसिव सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही है. तो दीज आर ऑल द कॉजेज फॉर ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड मींस कि यूरिक एसिड की किडनी से एक्सक्रीशन नहीं हो रही, दैट इज अनदर कॉज फॉर गाउट. मींस कि यूरिक एसिड जो है वो किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा और उसकी जो डेपोजिशन है वो बॉडी के अंदर हो रही है. बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, and when it deposits in the joints, that is gout. ठीक है. Most common joint that is involved is a big toe of the foot. ठीक है. Big toe metatarsophalangeal joint, जो big toe है, that is the most common joint which is involved in the gout. ठीक है. And the big toe swellings occur. ठीक है. Big toe जो है वो swollen हो जाता है, painful हो जाता है, inflamed हो जाता है, redness हो जाती है, और उसको क्या कहते हैं? पुडेग्रा. ठीक है. Podagra is a term when big toe develop gouty changes in which inflammation occurs in the big toe. ठीक है. और painful conditions हैं, redness develop हो जाती है. ठीक है. That is podagra. And this is the disease in which the monosodium urate crystals are deposited in the joints. This is very, very important to memorize. ठीक है. Another important thing is what is the main point here? जी मैम ये अभी जो आपने बोला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रिपीट कर दें. कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं बच्चे? लास्ट वाला मैम, ये जो the most common site for development of gout is big toe. आपका जो पाँव का big toe है उसमें most common site है for the development of gout. ठीक है. और जब वो big toe जो है, वो जो metatarsophalangeal joint है big toe का, जब वो involve हो जाता है उस joint में, इंट्रा आर्टिकुलर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो है उनकी डेपोजिशन हो जाती है, दैट इज पुडेग्रा. पुडेग्रा इज द टर्म यूज्ड व्हेन बिग टो इज इन्फ्लेम्ड, रेड, ठीक है, पेनफुल ड्यू टू दिस गाउटी चेंजेस. गाउट की चेंजेस क्या होती हैं? यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं. मेल टू फीमेल रेशियो इज 9:1 मींस के मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट एज ग्रुप इज मोर कॉमन? एज ग्रुप जो इंपॉर्टेंट है गाउट में, गाउट इज मोस्टली डेवलप्ड एट द एज ऑफ 45 इयर्स. 45 इयर्स अबव डेवलप होता है, बिलो 20-30 इयर्स जो है वो गाउट नहीं डेवलप होता. ठीक है. दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गाउट. ओके. बिग टो जो है मोर देन 70% इन्वॉल्व होता है, बट अदर जॉइंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स, फीट, रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट्स. ठीक है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट disease we have to study. Okay, now what are the differential diagnosis of gout? एक पेशेंट आपके पास आ जाता है, ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री लेते हो, उसको गाउट की चेंजेस आप डिटेक्ट कर लेते हो. ठीक है. बट उसके साथ और क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकते हैं? आपको पता है कि ये जो गाउट है ये एल्बो में भी डेवलप हो जाता है और हैंड्स में भी डेवलप हो जाता है, हैंड्स के जॉइंट्स में. ठीक है. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आर सेलुलाइटिस, सूडो गाउट एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मींस के पेशेंट आपके पास आया, आपने
उसकी हिस्ट्री ली, 45 इयर्स उसकी एज है, 45 इयर्स की एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकता है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन इज सूडो गाउट। सूडो गाउट क्या होता है कि सेम जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं दैट आर like of gout, but the crystals are not urate crystals, the crystals are of calcium pyrophosphate crystals, ठीक है। सूडो गाउट और गाउट में क्या फर्क है? गाउट is a disease in which there is deposition of monosodium urate crystals occur, ठीक है। on x-rays needle shape जो है वो crystals होते हैं, बट सूडो गाउट में क्या होता है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं और उसमें रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स जो है ऑन एक्सरेज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। Okay, now what are the investigating points of gout? Investigating points of gout में synovial fluid aspiration ली जाती है, synovial fluid का aspirate लिया जाता है। aspirate में आप डिटेक्ट कर लेते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स को। Another important investigation is ब्लड में सीरम यूरिक एसिड लेवल करवाया जाता है, that is more than 7.5 milligram per deciliter. And another important point is joint x-rays. joint x-rays में पंच्ड आउट लीजन्स होती हैं, जो बोन्स जॉइंट की जो एंड्स पे बोन्स नहीं मूव कर रही, स्लाइड्स नहीं मूव कर रही, मैं कर भी नहीं रही बच्चों, मैं वो मूव कर भी नहीं रही, ठीक है। अभी मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ और अभी मैं आपको ये सारा गो थ्रू कर देती हूँ, ठीक है। तो एक्सरेज में पंच्ड आउट लीजन्स होती है इन गाउट। These are all the important points regarding gout. Now how to reduce the uric acid? बॉडी में यूरिक एसिड को आप किस तरह से कम करते हैं? वेट रिडक्शन करके, अल्कोहल इनटेक कम करके। what are the food, कौन सा फूड होता है जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है? दैट इज मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, बीन्स, स्पिनच, दीज आर ऑल द फूड, ठीक है। एंड हाउ टू रिड्यूस द यूरिक एसिड? बाय इंक्रीज वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक ज्यादा करके आप जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं गाउट को, ओके। Now, crystal deposition disease है gout and pseudo gout. What is gout? It is hyperuricemia from any cause resulting in joint deposition of monosodium urate crystals. Gout is of two types, acute and chronic. Basically, 10% of population has hyperuricemia more than 7 milligram per deciliter, but only 1/20 of these has gout. Means कि अगर patients में hyperuricemia develop हो भी जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि patients को gout हो जाए, ठीक है। सिर्फ 1/20 जो पेशेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं गाउट, अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया भी होता है बॉडी में, ठीक है। नाउ व्हाट आर बेसिकली द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। मेल्स आर मोर अफेक्टेड, 9:1 इनकी जो है वो इंसिडेंस है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। और द एज ग्रुप इज बेसिकली 20 to 30 years below gout is very less likely, ठीक है। The main age for gout is 45 years, ठीक है। Alcohol drinkers are more susceptible for this disease, and also purine diet and lifestyle. Sedentary lifestyle हो तो gout develop हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा जो है वो डाइटरी इनटेक में मीट लेते हैं, स्पिनच है, बीन्स है, these are all the food which cause increased uric acid level in the body. और excessive weight, ठीक है। तो these are all the risk factors, ठीक है। बेसिकली इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि द मेन जॉइंट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन गाउट इज बिग टो। मोर देन 70% ऑफ द केसेस में बिग टो जो है वो इन्वॉल्व होता है। नाउ व्हाट इज हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट? एज ऑफ इंडिविजुअल एंड ड्यूरेशन ऑफ हाइपरयूरिसीमिया आर द फैक्टर्स। गाउट रेयरली अपीयर्स बिलो 20 to 30 years of हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है। मेल टू फीमेल रेशियो इज 9:1, ठीक है। व्हाट इज द जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन? एक्स लिंक्ड एब्नॉर्मैलिटी है ये, ठीक है। मल्टीफैक्टोरियल इसकी जो है वो कॉजेस हैं, ठीक है। हैवी अल्कोहलिक्स में दिस इज मोर कॉमन डिजीज, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं वो लोग। ओबेसिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स फॉर एग्जांपल थायाजाइड डायूरेटिक्स, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। जब भी मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो यूरिक एसिड के लेवल बॉडी में ज्यादा करती हैं या गाउट करती हैं, दैट इज डायूरेटिक्स एंड मोर स्पेसिफिकली थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं? बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड करवा देते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज लेड टॉक्सिसिटी, ठीक है। लेड टॉक्सिसिटी आल्सो इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू डेवलप गाउट। दिस इज द नॉर्मल फुट and here is a big toe where pathology occurs.
ठीक है. More specifically, bony erosions occur in the gout, destruction of the bones occur, urate crystals are present in the intra-articular space, and synovium become inflamed. एंड जो है वो ये जो पूरा एक वो बिग टो है वो पेनफुल होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग्स डेवलप हो जाती हैं. एंड दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ गाउट. ये पिक्चर आपको आ सकती है. तो जाहिर है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, ना ही ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे डेपोजिशन हुई भी है किसी चीज की, एंड दैट इज मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आएगी तो ये क्या है, गाउट है. मोर स्पेसिफिकली बिग टो इन्वॉल्व हुआ हुआ है, सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बिग टो इन्वॉल्व हुआ हुआ है, दैट इज मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट. ठीक है. व्हाट आर द एंटी गाउट ड्रग्स? CAPS is a mnemonic for these drugs. Colchicine, allopurinol, probenecid, and sulfenpyrazone. These are the drugs. ठीक है. बेसिकली अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं तो गाउट में जब पेनफुल कंडीशंस होंगी तो आपने पेन किलर्स देने हैं. इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या देते हो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हो. बेसिक एंड दिस इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस for gout is colchicine. ठीक है, colchicine is basically the drug used for gout. ठीक है, corticosteroids are also given to reduce the inflammation. Analgesics, obviously painkillers are given. ठीक है, bed rest is very important. ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस थी वो क्या था? मैम मेथोट्रेक्सी मैम वेट लॉस एंड एक्सरसाइज. EMARD से बचे. Yes, ठीक है, पेनफुल कंडीशन, पेन में तो आप देते ही एनाल्जेसिया हो, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देते हो और इन्फ्लेमेशन में एनसेड्स देते हैं, वो होती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है ना, दैट इज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो थी DMARD. ठीक है, और यहाँ पे गाउट में वो क्या है, कॉल्चिसिन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. ठीक है, so these are all the findings, these are all the points you have to cover in gout. Now another important topic is pseudo gout. What is pseudo gout? Means that this disease presents same like gout, but basically this is not gout. ठीक है, how to diagnose this thing? कि आपने करना क्या होता है डायग्नोसिस के लिए, गाउट की डायग्नोसिस के लिए एस्पिरेट करना होता है सनोवियल फ्लूइड का, जिसमें अगर तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होंगे तो मींस दैट इज गाउट. ठीक है, और अगर वो क्या होंगे, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स होंगे तो दैट इज सूडो गाउट. दोनों प्रेजेंट जो है वो सेम तरीके से करते हैं. ठीक है, सूडो गाउट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस. ठीक है, कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, तो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस इज बेसिकली अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड व्हेन देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट इन द जॉइंट्स, दैट इज कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस. ठीक है, दिस पिक्चर शोज दैट व्हेन देयर इज एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन इन द जॉइंट्स तो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस कहते हैं सूडो गाउट को. द अदर नेम ऑफ सूडो गाउट इज कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस. इट इज इडियोपैथिक डिजीज विदाउट एनी कॉज. हेरिडिटरी इसके जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं. सेकेंडरी फैक्टर्स क्या हैं इंपॉर्टेंट सूडो गाउट के, दैट आर जॉइंट डैमेज, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, अगेन पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, कैल्शियम की ब्लड में जो है वो क्वांटिटी ज्यादा हो रही है और वो डिपॉजिट हो जाएगा जॉइंट्स में जाके. हीमोक्रोमेटोसिस व्हेन देयर इज इंक्रीज आयरन इन द बॉडी. हाइपोमैग्नीसीमिया, जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया होता है तो इन रिटर्न हाइपोमैग्नीसीमिया होता है. ये एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज, दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ सूडो गाउट. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लें, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सूडो गाउट, हाउ सूडो गाउट इज डिफरेंट फ्रॉम गाउट, हाउ टू डायग्नोज दिस थिंग, and what are the basic factors. ठीक है, precipitating factors समझ लें, risk factors समझ लें. ठीक है, and what are the different types of pseudo gout. Idiopathic है, hereditary and secondary है. ठीक है, what are the secondary causes of pseudo gout? These are all the secondary causes: joint damage, hyperparathyroidism, hemochromatosis, hypomagnesemia, hypothyroidism and diabetes. ठीक है, so these are very important questions regarding exam and viva point of view. Now what is the treatment of pseudo gout? The same aspiration. ठीक है, एस्पिरेट कर लेते हैं आप जॉइंट के इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस से. जब आप एस्पिरेट कर लेते हैं, जो एक्सेसिव कैल्शियम डेपोजिशन होती है उसकी एस्पिरेशन करके पेन रिड्यूस हो जाती है. The same treatment like NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs to reduce the inflammation and pain. Colchicine, the same treatment as in the gout. Intra-articular steroid injections are very important.
मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। Now these are the differences between gout and pseudo gout. ठीक है, uric acid crystals deposit in the joints. Podagra. अच्छा, another important terminology here is tophi. What is tophi? Tophi is basically when uric acid crystals deposit in the soft tissues. ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल जब सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनको टोफाई कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आप डायग्नोस कैसे करते हो, दोनों को नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं इन गाउट एंड रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स होते हैं इन सूडो गाउट। ठीक है, द जॉइंट इन्वॉल्व इन गाउट इज बिग टो एंड इन द सूडो गाउट द जॉइंट इन्वॉल्व्स आर नी जॉइंट मोस्टली। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इसमें होंगे और इसमें क्या होंगे, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, okay, the most common site is first metatarsophalangeal joint and called podagra. ठीक है, तो these terminologies are very important. What is podagra, what is जो है chondrocalcinosis, what is pseudo gout, what is gout. ठीक है, so these are all the important points and treatment options. ठीक है, तो इसके अलावा these are again the differences between gout and pseudo gout. ठीक है बच्चों, ओके, इस लेक्चर में गाउट और सूडो गाउट के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अलावा एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर गाउट। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, वो फैक्टर्स जो प्रेसिपिटेट करते हैं किसी भी डिजीज को। एक तो होते हैं रिस्क फैक्टर्स के, किन इंडिविजुअल्स में रिस्क है इस डिजीज का, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी कि उस डिजीज को आप भी समझो कि एक तरह का एनहांस करते हैं। ठीक है, उसके सिम्टम्स को। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर गाउट आर डाइटरी एक्सेस ऑफ मीट, ठीक है, स्पिनच, बीन्स, सी फूड। ठीक है, these are all the organ meat. ठीक है, these are the precipitating factor. Dietary intake से regarding alcohol intake is another precipitating factor. Starvation for a long time. ठीक है, जिस तरह से कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो starvation is another important precipitating factor. And diuretics, कौन से diuretics? Thiazide. ठीक है, trauma is another precipitating factor. ठीक है, and these are all the precipitating factors. Risk factors are very important. Precipitating factors, incidence of the disease. Incidence of the disease क्या है, मेल टू फीमेल रेशियो कौन बताएगा मुझे? मैम 9:1। ठीक है, हाइपरयूरेसीमिया अगर डेवलप हो भी जाता है तो हर पेशेंट में गाउट डेवलप नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, अनदर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ गाउट इज gout is basically when there is uric acid metabolic defect occurs. ठीक है, overproduction of uric acid in the body in ठीक है 10% of the cases and 90% of the cases में क्या होता है, excretion कम हो रही होती है from the kidney. ठीक है, तो these are all the important points. और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हैं, आप एस्पिरेट करते हो synovial fluid को। ठीक है, और इसके अलावा एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो पैथोफिजियोलॉजी है, जॉइंट चेंजेस जो आती हैं बिग टो में, ये जो जॉइंट चेंजेस हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज अनदर डायग्राम। ठीक है, दिस इज गाउटी टो, गाउट इन द टो। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाउट इज बिग टो। ठीक है, और व्हाट इज पोडेग्रा। ठीक है, दीस आर ऑल द पॉइंट्स। ओके बच्चे, अभी ना कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या स्टार्ट में कर दूं, इसमें एसएलई मैंने पढ़ाना है, बट एसएलई इज अ बिग टॉपिक। अभी क्या टाइम हो गया, आप लोगों की अटेंडेंस लग रही है पोर्टल पे बाकी क्लासेस में? मैम आज स्टार्ट यस मैम लग रही है, लास्ट वीक भी लगी थी। अच्छा, चलो अब फिर मैं ना अटेंडेंस ही लगा लेती हूँ, मैं एसएलई आपको पढ़ा दूंगी, आप लोग ना थोड़ा सा पीछे हो दूसरे सेक्शन से। ओके, अबीहा तारिक Present. एमन अफजल Present. एमन फातिमा प्रेजेंट मैम। एमन खान Present. अलीन खान प्रेजेंट। आमना सत्तार प्रेजेंट मैम। उसके बाद अक्सा खान, प्रेजेंट मैम। वजीर, Present, ma'am. अरीज फातिमा,
आयशा अरीशा यूनस, अरूज फातिमा, Present, ma'am. आसमा मकसूद, Present, ma'am. आतिका रहमान, Present, ma'am. शतुरादिया, रिहा नूर, फातिमा अजहर, फातिमा जावेद, Present. फातिमा नईम, फातिमा नजीर, Present. तीन इरफान, Present. आनिया बिनते यावर, हादिया शफायत, Present. Present, Vanya Bintayawar. कौन प्रेजेंट है? वानिया, Vanya. हाफिजा इकरा नौरीन, Present. हाजरा नुमान, Present. हाजरा आजम चौधरी, Present. हया खान, इफ्रा हबीब, Present, ma'am. इफ्रा फातिमा, इरम अकमल, Present, ma'am. इरम मुनीर, Present. Present. इज्जा अरशद, Present. कमल तनवीर भट्ट, Present. कशफ नजीर, Present, ma'am. ताइबा जिया, Present, ma'am. हीन मरियम, Present, ma'am. मायरा हफीज, Present, ma'am. लाइका असर, Present. मरियम गौरी, Present, ma'am. आलिया रऊफ, मारवी शहबाज, Present, ma'am. अमरीन बुखारी, Present. जी मैम हया खान प्रेजेंट। मैंने आपको थ्राइस बोला है और आप फिर भी आप महरीन बुखारी प्रेजेंट है, Present. नाहिल फातिमा, Present. बुशरा अकबर, Present. नमरा रियाज, नतालिया मानद, नहजत जहरा, निमरा, Present. नूरुल ऐन, Present. रुबाब जहांगीर, Present, ma'am. रिहा मुश्ताक, Present. रिफ्का जमशेद, Present, ma'am. इमशा मुबारक, Present. ईशा सुहेल बाजवा, Present. रुकमा शबीर, Present. सबा हसनैन, Present, ma'am. आदिया इकबाल, समन असगर, Present, ma'am. अमन साकिब, प्रेजेंट मैम। समरा तारिक, Present, ma'am. सना सलीम, Present, ma'am. सहर जहीर, Present. आफिया बाबर, Present, ma'am. शानजा, शहजल मुश्ताक, सैयदा अनुषा अली, सैयदा Present, ma'am. ओके, सैयदा रिदा बतूल, तहरीम अकरम, तहरीम फातिमा, Present. उमायमा शकील, Present. उम्मे सलमा, Present, ma'am. रूज फातिमा, जैनब शाहिद, जीना एहसन, Present. मैम इफ्रा फातिमा प्रेजेंट। मेरा माइक नहीं काम कर रहा। क्या नाम है आपका? इफ्रा? इफ्रा फातिमा। एक मिनट, इफ्रा, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम सादिया इकबाल प्रेजेंट। बच्चों आप लोग पहले कहाँ होते हो? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैम मेरी तो चार्जिंग खत्म हो गई, एक का फोन ऑफ हो गया। क्या नाम है आपका? एज चल रहा है। क्या नाम है? मैम सादिया इकबाल प्रेजेंट। क्या नाम है? सॉरी, सादिया इकबाल। सादिया इकबाल, ठीक है जी। मैम फरीहा नूर। बच्चे अब कौन रह गया? मैम शेतल मुश्ताक प्रेजेंट। नेट डिस्कनेक्ट हो। बच्चे क्या नाम है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। फरीहा नूर। फरीहा एफ से। फरीहा, मैम
फरीहा नूर, यस मैम। किसने क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी सबा। मैम मैंने जी जी बताएं। मैम, वो आपने बताया था ना लेड टॉक्सिसिटी की वजह से भी गाउट हो सकता है, तो मैम मैंने वो लिंक पूछा था, मतलब लेड की टॉक्सिसिटी से किस तरह से हो सकता है गाउट? लेड पॉइजनिंग की वजह से बेसिकली बच्चों जब भी बॉडी में ब्रेकडाउन ऑफ सेल ज्यादा होती है, ठीक है, और लेड की पॉइजनिंग से इसका रिलेशन ये है कि इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू लेड। ठीक है, दो ही पैथोलॉजीज हैं, या तो एक्सक्रीशन नहीं होगी या फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी जो है वो लेड से क्या होता है कि काउंटर एक तरह की आप ये समझ लो कि वो नहीं होती, एक्सक्रीशन नहीं होती फ्रॉम द बॉडी। जी शहजल मुश्ताक आप बताएं, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। ओके मैम, थैंक यू। मैम जी मैम शेहज़ाद मुश्ताक भी प्रेजेंट है, शोर है। कौन प्रेजेंट है? शेहज़ाद मुश्ताक। इसलिए हैंड रेज किया हुआ है। ओके ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर।